स्टार्ट करते हैं तो मैं इंट्रोडक्शन शुरू कर देता हूँ. So, hello everyone. My name is Navdeep Seravat and I'm a third year technology student at DTU. So I have started my second semester and it has been almost around 2 years now. So in this webinar, we would be discussing what is a program, what is a programming language, IDE, basics of C++, data types and variables, conditional execution, if-else statements, switches, and loops. Apart from this, I would also be discussing with you all the 4 questions which were given in week 1 coding contest. ठीक है, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. हाँ, तो शुरू करते हैं प्रोग्राम से. What is a program? Just a second. A program is nothing but a set of instructions tell our computer how to process the input data and give the relevant or the necessary output. ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो हमारे पास एक सिस्टम है जो कि एक सिंपल एडर है. Two integers say 2 and 3. It will be adding these two integers 2 and 5 and will be displaying the result or the summation of these two integers onto a screen. तो हमारा प्रोग्राम का रोल क्या है इसमें? Our program role is that हमारा प्रोग्राम बताएगा कंप्यूटर को where to store these two integers, how exactly to add these two integers, and what is the process to render that information onto a screen. ठीक है, so every program needs to be written in a specific programming language, and every programming language has its own set of rules, just like our English language has some grammatical rules. So broadly, programming languages can be divided into 2. High-level programming language and there is a low-level programming language. इन दोनों के बीच के differences. High-level programming language includes C++, Python, Java, Ruby, etc. और low-level programming languages में आते हैं आपके assembly language and machine code. इन लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें, then our computer can only understand binary language which is in the form of zeros and ones. इसका रीजन यही है because at the very core, at the hardware level, our computer system is made up of multiple switches. If a switch is turned on, then signal passes through that particular switch, and that could be denoted by 1. And if the signal does not pass, then it is denoted by 0. At the very basic level, our computer can only understand the language of ones and zeros. Even if we write any program in a high-level language, say Java or Python, then we have to convert. हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर हम कोई भी हाई लेवल का प्रोग्राम लिख भी देते हैं, then we have to convert it into binary code because our computer or our system can only understand the language of ones and zeros. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है हमारे हाई लेवल प्रोग्राम की बाइनरी कोड में, this is done through compiler. Okay. Or so our high level language has much more resemblance to our native English language, or it is easier to understand for humans and requires much more processing in comparison to low level languages. Whereas low level language has much more resemblance to binary code, or low level languages are also very much platform specific, whereas high level languages are universal in nature.
इसका मतलब बता देता हूँ। अगर आप कोई भी कोड कर रहे हो और अगर आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर 32 बिट है या 64 बिट है, देन यू विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट इन अ 32 और 64 बिट डिफरेंट आर्किटेक्चर सिस्टम। ओके, वेर एज इन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोड कर रहे हो तो तो वो कोड आपको देखकर लिखना पड़ता है, बिकॉज काफी सारे फैक्टर्स उसमें इफेक्ट करते हैं, विच आर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर उस सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है लो लेवल कोड। और ऐसा हाई लेवल कोड में नहीं होता। हाई लेवल कोड इज यूनिवर्सल इन नेचर। इसके अलावा एक टर्म जो शायद आप सभी लोगों ने सुनी हो, दैट इज IDE। अब IDE क्या होता है? IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। It is a kind of a software package which not only contains just a source code editor, but also contains compiler, debugger, and various other features like autocomplete. ठीक है, तो जब हमारे पास ID पहले नहीं था, in earlier times, programmers used to write their source code in Notepad, save it in a .cpp file. उस CPP फाइल को फिर वो कंपाइल करके .o ऑब्जेक्ट फाइल बनाते थे, एंड देन दिस ऑब्जेक्ट फाइल वाज फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल .exe फाइल। नाउ इमेजिन यू जस्ट हैव टू राइट 10 लाइंस ऑफ कोड एज अ बिगनर, और आपको इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द बंदे तो यहीं पर ही प्रोग्रामिंग छोड़ देंगे, बिकॉज दिस इज रियली वेरी हेक्टिक। सो इसीलिए ही डेवलपर्स ने IDE बनाई है। IDE contains a plain text editor as well as a compiler, और आजकल के IDEs में तो ऑटो कंप्लीट फीचर्स और काफी काफी डिबगर भी इंक्लूडेड रहते हैं। सो जो IDE रिकमेंडेड है बिगनर्स के लिए, दैट इज कोड ब्लॉक्स। काफी लोगों ने इंस्टॉल कर रखा होगा और यूज भी कर रखा होगा पहले, जिन्होंने नहीं कर रखा आज कर लेना। एंड अगर आपको कोड ब्लॉक्स यूज करने में परेशानी हो रही है, बिकॉज if you have to write say 5 or 10 lines of code, then in code blocks you have to create an entire new file, और उस पे आप कोड लिखते हो फिर रन करते हो, एंड देन उस फाइल का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं बाद में। सो इन ऑर्डर टू सेव दैट मच टाइम, आप ऑनलाइन IDs भी यूज कर सकते हो। दो ऑनलाइन IDs दैट आई वुड बी रिकमेंडिंग विल बी ID1.com, एंड कोडिंग ब्लॉक्स की भी एक ऑनलाइन ID है विच हैज प्रिटी नीट इंटरफेस। इसमें यू कैन input your source code here, आप सीधा इनपुट दे सकते हो, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रन बटन, तो आपका आउटपुट नॉर्मली डिस्प्ले हो जाएगा। C++ के प्रोग्राम्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में अभी बस 5 मिनट में समझेंगे। उससे पहले लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स। सो इन C++ एक मिनट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हो। ID हमने नवदीप ने अभी जो शेयर किया आपसे, सबसे ID काफी इम्पोर्टेंट चीज शेयर की है। एंड कोई ऐसा कोई डाउट किसी को अभी यहाँ तक? अच्छा ठीक है, किसी को होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, हैंड रेज करके आवाज आ गई है। नो, ठीक है। ओके, सो डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे हम। सो इन C++ डेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 major categories. These are int, float, or you can say double, and char, and boolean. So जो भी integers हैं, integers तो सबको पता ही होगा, they are stored in integer in type of data types. Okay, and one int data type variable takes up 4 bytes in memory. Sorry, 4 bytes in memory. Similarly, जो भी decimal values हैं, they are stored either in float or double depending upon the size. और ये भी float type के भी data variables take 4 bytes in memory. Char takes only 1 byte
in computer memory, and bool also takes 1 byte. तो हर एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इससे पहले डिस्कस करने से पहले मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, बट 1 byte कंटेन्स 8 bits. ये आप सभी को पता होना चाहिए. वन बाइट कंटेन 8 बिट्स और एक बिट पे आइदर यू कैन स्टोर 0 और यू कैन स्टोर 1. ओके, सो टोटल एक इंटीजर वेरिएबल के लिए कितनी बिट्स मिली हमें? 32, बिकॉज वन इंटीजर वेरिएबल गेट्स 4 bytes and each byte contain 8 bits. So in total we get 32 bits. ओके, अब एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं. इफ वी आर गिवन से 4 बिट्स, 4 बिट्स दी हुई हैं, एंड हमें इससे मैक्सिमम पॉसिबल बाइनरी नंबर बनाना है. और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीका है वो बता देता हूं मैं आपको. जो राइट मोस्ट बिट है दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 0, फॉलोड बाय 2 to the power 1, then 2 to the power 2 and 2 to the power 3, so on. तो इसकी maximum decimal number using 4 bits of binary, how can we create them? We can put all the ones, और इसका आंसर हो जाएगा 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 plus 2 to the power 3, which is equal to 15. This can also be represented as 2 to the power 4 minus 1. ठीक है, अब जब हमने 4 बिट्स ली तो मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन ऑब्टेन यूजिंग दीज 4 बिट्स इज 2 to the power 4 minus 1. Now in an integer data type we have 32 bits, so the maximum integer value that can be stored in this is 2 to the power 32 minus 1. Okay, so in order to store an integer into the main memory, we convert it into its corresponding binary representation, and then those bits are stored in memory. ठीक है, इसी तरीके से हम फ्लोट और डबल को भी स्टोर कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है हम कैरेक्टर को कैसे स्टोर करेंगे मेमोरी में. हाउ कैन वी स्टोर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन द मेन मेमोरी? तो इसके लिए यू नीड टू नो something known as ASCII table. This is an ASCII table. इस ASCII table में हर एक कैरेक्टर के कॉरिस्पॉन्डिंग उसकी कोई इंटीजर फॉर्म में ASCII वैल्यू है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो कैपिटल A के कॉरिस्पॉन्डिंग उसकी ASCII वैल्यू है 65, स्मॉल a के कॉरिस्पॉन्डिंग उसकी ASCII वैल्यू है 97. सेम ऑन अगर हम 0 के लिए देखें तो it has an ASCII value of 48. So in order to represent any ASCII value क्या होती है सर? ASCII value basically हर एक कैरेक्टर का एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है. ओके सर. रीजन यही है क्योंकि आप कभी भी किसी भी कैरेक्टर को डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाओगे. यू कैन ओनली स्टोर बिट्स इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 इन मेन मेमोरी. सो उसके लिए आप इंटीजर को तो बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैरेक्टर को आप बाइनरी में सीधे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. कैरेक्टर की कोरिस्पॉन्डिंग हर एक कैरेक्टर की कोरिस्पॉन्डिंग उसकी कुछ ना कुछ ASCII वैल्यू होगी जिसको आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टोर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इन आवर मेमोरी. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि एक कैरेक्टर कंटेन्स 1 byte और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और हर एक बिट पर आइदर यू कैन स्टोर 0 और यू कैन स्टोर 1. सो टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस होगी वो हो जाएंगी 2 to the power 8. 2 to the power 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 256. सो आप एक बाइट के थ्रू यू कैन स्टोर 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं. और हमने अपनी ASCII वैल्यू में देखा, ASCII टेबल में देखा था दैट इन C++ we only have 127 characters. So we can say that 1 byte is more than enough to store all our characters. Okay, then we have bool data type. Bool data type stores only
data in the form of true or false. False is represented by 0 and true is represented by any non-zero value. इतना सबको क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं भैया करो। ओके अब बात कर लेते हैं। हमने शुरुआत में बोला था कि our program takes some input, उसको प्रोसेस करता है and then an output is generated. So to process any data we need to first store it. सही बात है ना? हाँ So उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारी मेमोरी लोकेशंस होती है। हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होती है और हर एक मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ एक यूनिक एड्रेस होता है। Let's suppose that this memory location has an address of 1010. Now, our programming language gives us the freedom to denote these memory locations with the help of variable names of our choice. अब इस memory location को access करने के लिए we can create any variable of any data type of our choice. मतलब इस वेरिएबल का जो नाम है ना वो हमारी मर्जी से हम कुछ भी रख सकते हैं and we can access this memory location. So let's say I have an integer int x is equal to 5. मैं इस x में 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. So when I'm doing so, actually what I'm doing, मैं एक मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस 1010 है उस पर 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. Okay. But the only condition here is that the variable names should not start with the integer. आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस it should not start with an integer. एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये है कि the variable name should not collide with the keywords which have a predefined meaning in our compiler. Okay, so keywords के बारे में बता देता हूँ. There are different types of keywords और हर एक कीवर्ड का हमारे कंपाइलर में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है. सो आर वेरिएबल कैन नॉट हैव द सेम नेम एज कीवर्ड्स, क्योंकि उसके बाद फिर डेफिनेशन कोलाइड हो जाएगी कंपाइलर के लिए और कंपाइलर के लिए ये प्रोसेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि वेदर इट इज अ वेरिएबल और अ कीवर्ड. सो ऐसे केसेस में एरर्स आ सकते हैं. कीवर्ड्स होते हैं इफ, एल्स, इंक्लूड and switch, for, etc. All those words which have a predefined meaning to our compiler, उन्हें हम keywords बोलते हैं. ठीक है, अब arrays के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. arrays के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ. Let's suppose you have to store the marks of 5 students of your class. अगर आपको 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो आप बोल दोगे कि लेट्स क्रिएट 5 डिफरेंट वेरिएबल्स और हर एक वेरिएबल में वी कैन स्टोर एवरी स्टूडेंट्स मार्क्स. लेकिन अब मैं एक और एग्जांपल लूं और मैं कहूं कि आपको 100 स्टूडेंट्स के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? जनरेटिंग यूनिक 100 डिफरेंट इंटीजर वेरिएबल्स दैट वुड बी काइंड ऑफ फूलिश. सो इस केस के लिए वी कैन क्रिएट एन array. Array is nothing but a contiguous block of memory which is used to store same kind of data. ठीक है? When I'm saying contiguous blocks of memory, I mean, let's suppose this is our array और अगर इस ब्लॉक का एड्रेस 100 है, then this block would be having address as 104, क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल टेक्स 4 बाइट्स. तो अगर इसका 100 है तो इसका एड्रेस होगा 104, इसका एड्रेस होगा 108, इसका एड्रेस होगा 112, 116 एंड सो ऑन. ओके, और एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? एरे को इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स है
int a followed by square brackets, और इन square brackets के बीच में you need to define the size of the array and followed by a semicolon. Okay. और आप इन सभी ब्लॉक्स को एक ही वेरिएबल से डिनोट कर सकते हो. अगर आपको फर्स्ट ब्लॉक को डिनोट करना है या फर्स्ट ब्लॉक को यूज करना है, देन यू विल बी यूजिंग a followed by 0. 0 is the index of the very first block. जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है एरे में वो हमेशा 0 से होगी. ये बात याद कर लेना सबके सब. सेकेंड ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस a of 1, और ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह काम करेंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर एरेज. और जैसे जैसे हम कोड करेंगे यू विल गेट टू नो कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं. अब इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विचेस और लूप्स समझाने के लिए आई विल गेट टू द कोडिंग पार्ट. मैं अभी के लिए ये वाली आईडी यूज कर रहा हूँ. और बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ कि C++ प्रोग्राम दिखता कैसा है और हर एक चीज का क्या मतलब है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ हेडर फाइल. हेडर फाइल हमेशा हैशटैग इंक्लूड से शुरू होगी. दिस मीन्स दैट वी आर इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल whose name is iOS stream. iOS stream को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं. Okay, iOS stream is a header file which contains the definition and classes of different functions and objects that we would be using in our program. अब ये काफी ज्यादा टर्म्स आ गई जो आपके शायद सर के ऊपर से जाए, बट अभी के लिए आप ये समझ लो ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस वगैरह हम सब बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि हेडर फाइल कंटेन्स द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक सिंटैक्स एंड डेफिनेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं. उसके बारे में जो सारी डिटेल्स है ना, दैट इज स्टोर्ड इन अ हेडर फाइल. ओके, यूजिंग नेमस्पेस std basically denotes that our entire program that we would be writing or that we have already written is according to the standard C++ template. int main is our main function जहां से हमारा actual execution of the program starts from int main. और हमारा जो पूरा लॉजिक है और जो पूरा कोड है, दैट एंटायर एग्जीक्यूटेबल कोड इज रिटन इन बिटवीन दीज टू ब्रेसेस. इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में हमारा पूरा कोड आता है जो हमें एग्जीक्यूट करना है. हेलो वर्ल्ड में आपको रन करके दिखा देता हूँ. और सी आउट और सी इन के बारे में और बताना मुझे. सी आउट फॉलोड बाय दिस आउटपुट ऑपरेटर basically renders a string or any kind of data onto a screen. Similarly, if we have to store any kind of data into a data variable, say we have a data variable temp of integer data type, and we have to store something into this data variable, then we use cin followed by input operator. This is our input operator. Okay. और इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें अपनी स्क्रीन पे रेंडर करना है तो वी कैन यूज सी आउट फॉलोड बाय आउटपुट ऑपरेटर. और मैंने 2 एज एन इनपुट दे दिया, सो आई विल बी गेटिंग 2 फॉलोड बाय हेलो वर्ल्ड. ओके, नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस कंडीशनल एग्जीक्यूशन, जिसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट से शुरू करते हैं. तो लेट्स से जो मैं आज एक्टिविटीज करूंगा, all these activities would be dependent on today's temperature. हम यूजर से आज का टेम्परेचर इनपुट करा रहे हैं यूजिंग cin, and if this temperature is says less than 15 degrees Celsius, then I'll be creating a bonfire. Or if the temperature is greater than say 20 degree, then I'll be drinking coffee.
और अगर टेम्परेचर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देन आई विल जस्ट सिंपली गो टू स्लीप। ओके, तो इस केस में हो क्या रहा है, आवर प्रोग्राम इज फर्स्ट आस्किंग द यूजर टू गिव सम इनपुट, और इनपुट क्या है, टुडेज टेम्परेचर, ठीक है। एंड देन देयर इज अ कंडीशन, हमारे प्रोग्राम लाइन नंबर 9 पर ये चेक करेगा, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू देन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड, और पूरा कोड जो इसके बाद है, जो इसके बाद वाली सारी एल्स इफ स्टेटमेंट्स है और जो इसके बाद वाली सारी एल्स स्टेटमेंट्स है, दे विल जस्ट सिंपली बी इग्नोर्ड। ओके, सो लेट्स से आवर टेम्परेचर टुडे इज 12, so we'll just get bonfire। ये वाली दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही बिकॉज आवर प्रोग्राम फर्स्ट चेक्स इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू और नॉट। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू, तो जो इन दोनों ब्रेसेस के बीच में जितना भी कोड है दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड, और इसके बाद वाली सारी एल्स इफ स्टेटमेंट्स और एल्स स्टेटमेंट्स विल जस्ट सिंपली गेट इग्नोर्ड। अब दूसरा केस ले लेते हैं, लेट्स से our temperature today is 22. So our program will first check at line number 9, the condition which is present at line number 9 is checked first. ये condition false है, तो this portion of the code will get ignored, और line number 12 पर दोबारा चेक करे, प्रोग्राम हमारा दोबारा line number 12 पर condition चेक करेगा कि क्या temperature is greater than 20. If yes, then all the code which is present between these two braces will get executed, इसलिए कॉफी हमारा आउटपुट है। ओके, और अगर सारी इफ स्टेटमेंट्स एंड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की जितनी भी कंडीशंस हैं, दे ऑल आर रिटर्निंग फॉल्स, सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत आ रही हैं, देन आवर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट द कोड विच इज इन एल्स ब्लॉक। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर एल्स इफ। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गई, कंडीशनल एग्जीक्यूशन हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद लूप। लूप शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ लूप होता क्या है। अगर हमें कोई भी पीस ऑफ कोड को बार बार रन करना है, until and unless a particular, भैया मेरे को एक चीज पूछनी थी, जो आपने ये 3 में करा है, इफ एल्स इफ और एल्स, इसको ऐसे ही लिखते हैं? क्योंकि अगर 2 लिखेंगे 2 कंडीशन के लिए, उसमें तो इफ एल्स होगा, और अगर 3 है तो बीच वाली एल्स इफ होगी। हाँ, बीच वाली एल्स इफ होगी, और इसी को मैं बता देता हूँ, इसी में आप काफी सारी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हो, जैसे कि इफ टेम्परेचर इज लेस देन 15, इसके अंदर में भैया एक बार इफ एल्स वाली कंडीशन दोबारा समझा दो, थोड़ी समझ में नहीं आती भैया। ये एल्स इफ कैसे लिखा? ये 3 है ना, 2 में तो पता है मेरे को, ये तीसरा थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं 4-5 लिखता हूँ कंडीशंस में तो वो कैसे लिखूं, क्योंकि मेरे में एरर आता है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको 4-5 कंडीशंस लिखनी है ना, तो आप सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट डाल दो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारी नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक होगी। नेक्स्ट वाली कंडीशन, अगर आपके पास 2 से ज्यादा कंडीशन है तो आप एल्स इफ डाल सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन है तो आप सिर्फ एक इफ ब्लॉक बनाओगे जिसमें वो कंडीशन स्पेसिफाइड होगी, फॉलोड बाय एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मान लो आपको 2-3 कंडीशन और डालनी है तो आप इसके नीचे एक और एल्स इफ बना सकते हो। say temperature is less than 12 and say temperature is less than 18 and greater than temperature is greater than 16। ठीक है, तो ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो ये है, ये सारी इफ फॉलोड बाय एल्स इफ फॉलोड बाय एल्स इफ एंड फॉलोड बाय एल्स, इनके बीच में आप कोई और स्टेटमेंट जैसे कि कोई वेरिएबल के डिक्लेरेशन नहीं डाल सकते हैं। ऑल ऑफ दिस कोड नीड्स टू बी इन कॉन्टिन्यूएशन, ये एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में लिखा जाता है। अगर आप इसके बीच में कहीं पर भी कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने चाहोगे देन यू विल गेट सिंटैक्स एरर।
तो ये चीजें होती हैं। इसके अलावा एल्स इफ स्टेटमेंट में आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर या फिर किसी एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर काफी सारी नेस्टेड और इफ एल्स स्टेटमेंट डाल सकते हो। जैसे कि मान लो इसके अंदर मैं डाल दूंगा 10 is greater than 25, तो ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इसमें किसी और को कुछ और पूछना है? नहीं भैया। ठीक है, तो अब लूप्स की बात करते हैं। लूप्स बेसिकली अगर हमें एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करते जाना है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड इज नोन एज लूप। ओके, लूप को डिफाइन करने के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला होता है कंडीशन। जब तक ये एक कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तब तक हमारा piece of code will get executed again and again until this condition holds true. Second is a variable. We need to define a variable जिसके थ्रू हम इस कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। एंड थर्ड इज अपडेटिंग दिस वेरिएबल, क्योंकि अगर उस वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट होगी देन आवर लूप इज गोइंग टू रन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। इसलिए हमें उस वेरिएबल को जो कि हमारी कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहा है दैट नीड्स टू बी अपडेटेड। तो 3 तरीके के लूप्स होते हैं। पहला होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में वेरिएबल को हम बाहर इनिशियलाइज करते हैं, देन वी स्टेट व्हाइल, और इस ब्रैकेट के अंदर वी स्पेसिफाई द कंडीशन। इन दिस केस से जब तक आई की वैल्यू 6 से कम है दिस पीस ऑफ कोड इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। और एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पर। एंड देन आवर थर्ड फैक्टर क्या था हमारा, इस वेरिएबल को अपडेट करना है। सो आई एम इंक्रीमेंटिंग दिस वेरिएबल बाय 1 ईच टाइम। ओके, इसको रन कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा आउटपुट देगा। पहले वाली आइटरेशन में इट गेव यू 0 क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी। उसके बाद हमने अपडेट कर दी आई की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू 1 रिटर्न कर दी। जब तक आई की वैल्यू 6 से कम है इट विल गेट एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, और उसकी हर एक स्टेप में आई की वैल्यू विल गेट इंक्रीमेंटेड अगेन एंड अगेन। दूसरे काइंड ऑफ लूप इज नोन एज फॉर लूप। फॉर लूप इज एग्जैक्टली सेम लाइक व्हाइल लूप, इसमें बस थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होता है। व्हाइल लूप में तो आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज बाहर किया है, देन यू हैव स्पेसिफाइड द कंडीशन इन बिटवीन द ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपने उस वेरिएबल को अपडेट करा है लूप के अंदर। ये तीनों फैक्टर्स फॉर लूप में इन्हीं ब्रैकेट्स के बीच में कर देते हैं हम। तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज फैशन में लगता है। काम दोनों सेम ही करेंगे, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। i is equal to 0, i is less than 6, and i plus plus। जो तीनों फैक्टर्स हैं जो एक लूप को डिफाइन करते हैं, all these 3 factors are written in a single line in for loop, and these are separated by semicolons। Okay। ये तो हमारा व्हाइल लूप का आउटपुट था, ये हमारा फॉर लूप का आउटपुट है। इसी में हमारा एक डू व्हाइल लूप भी होता है। डू व्हाइल लूप इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाइल लूप। इसके बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। व्हाइल लूप में हमारी पहले कंडीशन चेक होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला पीस ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड, और अगर इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो हमारा कंट्रोल प्रोग्राम का लाइन नंबर 12 पे चला जाएगा। आगे वाला प्रोग्राम में जो हमने आगे चीजें लिखी हैं दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड रादर देन दिस ब्लॉक।
डू व्हाइल लूप में क्या होता है, बिफोर चेकिंग द कंडीशन हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे इस पर्टिकुलर कोड को, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, इफ द कंडीशन इज ट्रू तो दोबारा ये कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, एक पूरा लूप बनता चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वाज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये स्टेटमेंट है न्यू लाइन की, सी आउट एंडल गिव्स अस अ ब्रेकिंग पॉइंट बिटवीन द आउटपुट, एक नई लाइन दे देगा हमें। सो अब जो भी मैं आउटपुट करूंगा दैट विल बी डिस्प्लेड इन अ न्यू लाइन, और आई को 0 पुट कर देते हैं, सी आउट आई इंक्रीमेंट कर दिया, और मैंने इसमें स्पेसिफाई करना भूल गया मैंने, एक सेकेंड, आई 0.6 इज द कंडीशन। सो ये 3 टाइप्स ऑफ लूप्स थे और काम सेम ही करते हैं, सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। डू व्हाइल लूप इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि इसमें इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, हमारा जो कोड है इट विल गेट एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। ओके, सो आई गेस सारे थ्योरी वाले पोर्शंस तो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब जो कॉन्टेस्ट वीकली 1 के जो क्वेश्चंस थे हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला प्रॉब्लम वाज, एक बार पूछ लो किसी को कोई डाउट यहाँ तक। हाँ किसी को पूछना है यहाँ तक? या एक बार नेम स्पेस आई एसटीडी दोबारा बता दो, क्या करता था वो? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यस भैया। ये बेसिकली बताता है कि वट एवर कोड दैट वी विल बी राइटिंग और दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन इन आवर C++ प्रोग्राम, जो भी कोड हमने अभी तक लिखा है, जो भी कोड हम आगे लिखेंगे, दैट इज एज पर द C++ बेसिक टेम्पलेट, जो कि C++ की बेसिक टेम्पलेट है और जो कि बेसिक C++ की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही सारा हमने प्रोग्राम लिखा है, कुछ भी बाहर का नहीं लिखा। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और जैसे आप ऊप्स पढ़ोगे या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते चले जाओगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। जैसे कि आई स्ट्रीम है, आई स्ट्रीम के हेडर फाइल में 2 क्लासेस होती हैं, आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम, जिनके ये सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं अब ये बताने लगूंगा तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप ऊप्स पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ क्लास और टेम्पलेट क्या होता है, तो ये आगे आपको समझ आता चला जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आप बस ये समझ सकते हो कि यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इज रिटन टू डिनोट दैट जो भी हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक C++। अच्छा, अब भैया अगर इसे नहीं, अगर हम नहीं लिखते हैं तब भी तो चल ही जाता है, तो फिर मतलब अभी यूज क्या है इसका? मतलब हेलो, अगर अलग नहीं लिखोगे देन यू हैव टू राइट, जो भी आपका जो भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो ना, तो देन यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस। एक बार हटा के देख लेते हैं ना। एसटीडी फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन। हाँ नवदीप, एक बार हटा के दिखा दो डायरेक्ट। इस वाले कंपाइलर में ना चले, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन देख लेते हैं हटा के। ये चीजें कंपाइलर डिपेंडेंट भी होती हैं। इस वाले में नहीं चलेगा, दूसरे कंपाइलर में आप एक बार रन करके देखना। लेकिन अगर आप C++ की बेसिक वेबसाइट को खोलोगे तो उसमें ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहां पर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी यूज नहीं करते और इस स्कोप रेजोल्यूशन को यूज करके पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। सो इज आल्सो केस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंडल हटा दो, एंडल के आगे भी ना एक बार एंडल हटाना। अच्छा एंडल हटाओगे तो फिर एंडल की जगह वो लिख दो, न्यू लाइन वाला स्ट्रिंग नहीं होता, एक बार शायद चल जाए। एंडल के वजह से गलती बता रहा है ना, एसटीडी जस्ट लेट मी ट्राई। हाँ न्यू लाइन वाला लिख देते हैं, नीचे भी है क्या एंडल? एक ही है, हाँ ठीक है, लेट्स सी एंडल हटा के क्या होता है। नहीं हुआ तो मतलब कंपाइलर का। हाँ देखो वो एंडल के आगे भी ना हमें एसटीडी एंडल लिखना पड़ता,
मतलब क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ही है, एंडल क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो जैसा आप देख रहे हो, हाँ एक बार नवदीप समझा दो जो हुआ है यहाँ पे भी। सो जैसा मैंने बताया, अगर आप इसको नहीं लिखते, यूजिंग नेम स्पेस std को नहीं लिखते, देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड C++ टेम्पलेट, और बेसिकली इस टेम्पलेट का एक पार्ट है। सो यू राइट इट एज लाइक दिस, std फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट दैट यू आर यूजिंग। इस केस में सी आउट एक ऑब्जेक्ट है OStream क्लास का, which is included in this header file. So this was it. जिसको डाउट समझ में आ गया, मतलब नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली देखो नहीं चलेगा अगर आप यूजिंग नेमस्पेस std नहीं लिखोगे ना, आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। तो रादर देन हर जगह लिखो, एक बार ऊपर लिख दोगे वो अपने आप पकड़ लेगा कि हाँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का आप टेम्पलेट यूज करो या फिर फॉर्मेट यूज करो जिसमें सी आउट और ये सारी चीजें डिफाइन है। ओके। तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, जो वीक 1 के कॉन्टेस्ट में दिया था, दैट वाज रिवर्स एन एरे। काफी सिंपल क्वेश्चन था, हमें एक एरे दिया हुआ है एंड वी जस्ट हैव टू रिवर्स इट। तो इसकी दो अप्रोचेज हैं, एक तो एक बेसिक अप्रोच है जिसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बोल सकते हैं। लेट्स से वी आर गिवन एन एरे लाइक दिस, और उसमें कुछ वैल्यूज है 1 2 3 4 5, हमें रिवर्स करना है। तो पहली अप्रोच जो आप सभी लोगों ने सोच भी ली होगी और काफी लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली होगी ढंग से, दैट इज वी क्रिएट एन ऑक्सिलरी एरे ऑफ अबाउट द सेम साइज। एक ऑक्सिलरी एरे हम एक एग्जैक्टली सेम साइज की, और हम ओरिजिनल एरे को बैकवर्ड ट्रैवर्स कर रहे हैं। मतलब ओरिजिनल एरे को रादर देन ट्रैवर्सिंग फ्रॉम जीरो ऑफ द एरे, हम i is equal to n-1 से शुरू होकर i is equal to 0 तक जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट को उठा रहे हैं and we are putting it into our new auxiliary array। पहले i is equal to n-1 पे हमने 5 को रीड किया, 5 को अपने न्यू एरे में इनपुट कर दिया, देन 4 को रीड किया, 4 को न्यू एरे में डाल दिया, फॉलोड बाय 3 2 और 1। इस अप्रोच में गलती तो कुछ नहीं है, बट इट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जरूरत पड़ रही है इसमें। सो हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज दिस? वी कैन ऑप्टिमाइज दिस बाय मेकिंग चेंजेस इनटू आवर ओरिजिनल एरे। हमें ओरिजिनल एरे में ही कुछ चेंजेस करके उसको रिवर्स करना है। सो इसका सोल्यूशन ये है दैट वी टेक टू वेरिएबल्स, एक i और एक j। i और j हमारे दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं। i will be pointing towards the head of the array and j will be pointing towards the tail of the array। एक स्टेप में we will be swapping the values pointing by i and j, followed by we will be incrementing i to the next position and we will be decrementing j to the left। ओके, सो एक स्टेप में i जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं दैट इज 1 और j जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं दैट इज 5, हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। सो 5 आ गया 1 के बदले और 5 के बदले चला गया 1, एंड देन वी विल बी इंक्रीमेंटिंग i एंड डिक्रीमेंटिंग j। तो i इज नाउ पॉइंटिंग टू 2 and j will be pointing to 4। then again we will be following the same steps। 4 और 2 को स्वैप कर दो, तो 2 के बदले 4 आ जाएगा और 4 के बदले 2 चला जाएगा, एंड these steps will keep on going on till our i is less than j। ठीक है, ये आई गेस सबको समझ आ गया होगा। इसको मैं कोड करते वक्त एक बार ढंग से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में हम डाल रहे हैं द साइज ऑफ द एरे विच वी नीड टू इनपुट। ठीक है, नाउ वी आर क्रिएटिंग एन एरे ऑफ दैट सेम साइज, और उस एरे में हम अब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल एरे बन चुकी है। नाउ वी नीड टू रिवर्स इट।
रिवर्स करने के लिए हमने दो वेरिएबल्स लिए. One is I, which will be pointing towards the head of the array, and another one is J, which will be pointing to the tail of the array. To 0 and J is equal to n minus 1. Okay. Now we'll be looping, और हर एक step में we have to swap the values at I and J. Swap करने के बाद we will be incrementing I and decrementing J. और कंडीशन में हम डालेंगे while I is less than J. ओके, सो हमारी array रिवर्स हो चुकी है. Now we just have to print it. So ये तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कर ही लिया था. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. भैया हाँ जी. भैया यहाँ पे स्वैप जो आपने फंक्शन लिखा था वो पहले से डिफाइन रहता है. हाँ, ये स्वैप पहले से डिफाइन रहते हैं, लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हो. एक बार फर्स्ट क्वेश्चन ना थोड़ा सा जल्दी हो गया, एक बार वापस जाना. मैंने जानबूझ के जल्दी किया था क्योंकि इन लोगों को जाना था ना. अच्छा, तब भी एक बार देख लेते हैं वापस. कोई नहीं. फर्स्ट वाला एक बार फर्स्ट वाला देख लो. हाँ, सबको समझ में आ गया फर्स्ट वाला था जो मैंने यूज किया. आप इसके बदले मैन्युअली भी कर सकते हो. मैं बिना फंक्शन यूज करे एक बार लिख देता हूँ कोड को. जस्ट अ सेकेंड. आपको स्वैप करना है दो वैल्यूज को. देन यू कैन टेक अनदर वेरिएबल और आप temp में a of I को स्टोर करवा लो और a of J में भैया उल्टा कर दो, AI को AJ कर दो साइन. सॉरी, AI को AJ कर दूं. नहीं, हाँ नीचे नीचे AI को AJ. हाँ AI को AJ ना. AI को AJ. ठीक है. ठीक है, तो बिना फंक्शन यूज करे भी आप कर सकते हो. फंक्शन यूज करने का बस यही फायदा रहता है कि आपको ये पूरा चीज अगर आपको पहले से ही आता है, देन यू कैन सिंपली यूज एनी इनबिल्ट फंक्शन. तो इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो बताओ. मैंने आपको लॉजिक बता ही दिया था. और बेसिकली हमने इनपुट लिया है विच इज द साइज ऑफ द एरे. एक एरे बना दिया उस साइज का और उस एरे में वैल्यूज पुट कर दी. ये तो हमारा पूरा इनपुट वाला पोर्शन है, जो कि यूजर जो भी इनपुट दे रहे हैं वो हमने अपना स्टोर करा लिया. ठीक है. देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिवर्स दिस एरे. तो हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक I और एक J. I इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेड ऑफ द एरे और J इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टेल. ठीक है. और एक स्टेप में we will be swapping these two values. एक स्टेप में 5 के बदले हम 1 लिख रहे हैं, 1 के बदले 5 लिख रहे हैं, 5 के बदले 1 आ गया और 1 के बदले 5 आ गया, और I को इंक्रीमेंट कर दिया और J को डिक्रीमेंट कर दिया. ठीक है. सो नाउ I will be pointing to 2 and J will be pointing to 4. उसके बाद हम वही स्टेप दोबारा फॉलो करेंगे. 2 और 4 को स्वैप कर दिया, 4 के बदले 2 आ गया, 2 के बदले 4 चला गया, और ये सारे स्टेप्स हम करते चले जाएंगे until our I is less than J. तो इससे हमारी पूरी एरे रिवर्स हो जाएगी विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस. ये कोड है और ये तो हमने सिर्फ आउटपुट करा है. ये हमने एक लूप लगाए और एक स्टेप में वी आर स्वैपिंग द टू वैल्यूज एंड देन इंक्रीमेंटिंग I पॉइंटर एंड डिक्रीमेंटिंग J पॉइंटर. बस यही था. किसी को कुछ पूछना है इसमें?
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मेकिंग एनाग्राम्स। मेकिंग एनाग्राम्स क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एनाग्राम्स कहते किसे हैं और एनाग्राम्स होता क्या है। लेट्स से वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 और S2, दो स्ट्रिंग दी हुए हैं। S1 string has A, B, B, C, and S2 string has C, B, A, B, A. Okay, these two strings are called anagrams of each other अगर दोनों string में same number of characters हैं जो कि same number of time आ रहे हैं। For example, S1 string में A character 2 बार आ रहा है, B character 2 बार आ रहा है, C 1 बार आ रहा है। एंड सिमिलरली S2 में भी A कैरेक्टर 2 बार आ रहा है, B कैरेक्टर 2 बार आ रहा है और C सिर्फ 1 बार आ रहा है। सो एज वी कैन सी बोथ दी स्ट्रिंग्स कंटेन सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। देयरफॉर दीज टू स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड एज एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स and we need to find out the minimum number of deletions which we have to perform in order to make both these strings anagrams of each other. कोई भी दो स्ट्रिंग दी हुई है, let's suppose ABC, और ये दोनों स्ट्रिंग ले लेते हैं। ABC एक स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग है AMNOP। तो हमें अगर इन दोनों को एनाग्राम बनाना है then we have to delete some characters from both these strings. तो S1 से जो कैरेक्टर्स हम डिलीट करेंगे वो होंगे B और C, और S2 से जो कैरेक्टर डिलीट करेंगे वो होंगे MNOP, क्योंकि ये MNOP S1 में कहीं नहीं आ रहे और B और C S2 में कहीं नहीं आ रहे। सो इन टोटल वी हैव टू डिलीट 6 कैरेक्टर्स, 2 B और C और 4 S2 से विच आर MNOP। ओके, सो इसके पीछे का एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं कैसे करेंगे। अगर हम S1 और S2 का फ्रीक्वेंसी सेट बना लें, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर लें कि कितनी बार A कितनी बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है, C कितनी बार आ रहा है, एंड सो ऑन टिल Z। अगर हम ऐसा कुछ कर सकें देन वी जस्ट हैव टू कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इन बोथ दीज स्ट्रिंग्स followed by the frequency of B in both the strings and so on till Z. ठीक है, so what we will be doing is we'll be creating a array of size say 26. We'll be creating two arrays of size 26 और हर एक array में we will be storing the frequency of each and every alphabet of English language. So A कितनी बार आ रहे हैं that would be stored here, B कितनी बार आ रहे हैं that will be stored here, C कितनी बार आ रहे हैं that will be stored here, D कितनी बार आ रहे हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इस एरे में हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी A से लेके Z तक। सिमिलरली एक और एरे बना रहे हैं, इसमें भी हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी A से लेके Z तक। ओके, देन एक लूप लगाएंगे और आइटरेट करेंगे दोनों एरेज पर एक साथ। अगर द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इन S1 इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इन S2 तब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब दोनों लेटर्स सेम नंबर ऑफ टाइम अकर कर रहे हैं S1 और S2 में, then that means our string is already an anagram। तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। इफ देयर इज अ मिसमैच तब हमें दिक्कत होगी, और वो जो मिसमैच होगी, जो मिसमैच्ड वैल्यू है दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड इनटू अवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो इसको कोड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो एरेज बना रहे हैं ऑफ साइज 26 विच विल बी स्टोरिंग फ्रीक्वेंसीज। एक का नाम A रख लिया और दूसरे का नाम B रख लिया। A will be storing the frequency of all the characters which are present in S1 string and B will be storing the frequency of all the characters which are present in S2 string। अब इन दोनों arrays को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम ऐसे दो arrays बनाते हैं then it might contain some garbage values। So in order to avoid that
we'll initialize these arrays with 0. ये हो गया. Then we'll iterate to s1 string s1 स्ट्रिंग पर हम आइटरेट करेंगे और हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे ए एरे में. ये मैंने क्या किया है, ये मैंने हर एक कैरेक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स निकाल दिया और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर वी हैव इंक्रीमेंटेड दैट वैल्यू. ये कैसे करें ये मैं बता देता हूँ आपको. जब मैं कैरेक्टर डेटा टाइप डिस्कस कर रहा था, देन आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट ASCII वैल्यूज. तो when si of I say s1 of I is suppose d, so in computer language d will be denoted by small d will be denoted by 100 and small a character will be denoted by 97. तो 100 minus 97 will give us 3, जो कि हमारा इंडेक्स होगा. जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमें d की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी जो स्टोर करनी है वो थर्ड इंडेक्स पर होगी. So that is why we have subtracted s1 of I minus a. और ये प्लस प्लस क्या, दिस प्लस प्लस इज अ इंक्रीमेंटर. इसका मतलब हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एक ऐड कर रहे हैं. वी आर एडिंग 1 टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन. Similarly, we'll be iterating in our s2 string, और s2 string में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम रिकॉर्ड कर लेंगे बी एरे में. Once this frequency has been recorded, उसके बाद हम अपना आंसर वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमें रिटर्न करना है. और अब हम एक साथ दोनों ए और बी की हर एक पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं उसको कंपेयर करेंगे. इफ देयर इज सम मिसमैच वी हैव टू ऐड दैट टू आवर आंसर. हम क्या कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं इस पूरे एरे पर, दोनों एरे पर एक साथ लूप कर रहे हैं. एंड वी आर चेकिंग द वैल्यू प्रेजेंट एट दिस पोजीशन विद द वैल्यू प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन. अगर कोई भी मिसमैच है तो इसका मतलब हमें सम नंबर ऑफ डिलीशंस करने की जरूरत है. और अगर कोई भी मिसमैच नहीं है, when both the values are exactly same, इसका मतलब frequency of A in S1 is same as that of frequency of A in S2, तो हमें कोई भी डिलीशन करने की जरूरत नहीं है. We need not add anything to our final answer. ठीक है. So आंसर में हम प्लस कर देंगे प्लस इक्वल टू A of I minus B of I. अब कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर B of I, जो ये B एरे है, इस पे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू हो सकता है ज्यादा हो एज कंपेयर टू A of I. तो उस चीज के लिए हमें मॉडुलस लेने की जरूरत है. और मॉडुलस का एक फंक्शन होता है ABS. ABS स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू. तो इसका मतलब हम A of I minus B of I की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं. And this is what we are adding in our final answer, और इसको हम रिटर्न कर रहे हैं. अच्छा, मैंने शायद कुछ गलती करी है. हाँ, यहाँ पर जे होगा.
इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज पैलिंड्रोम इंडेक्स। क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ व्हाट इज अ पैलिंड्रोम और हाउ डू वी एक्चुअली चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। Palindrome is any string which reads the same from frontwards and backwards. For example, एक string है ABAC ABC ABA। अब इस string को अगर आप यहाँ से पढ़ोगे या यहाँ से पढ़ोगे, it will be reading same। और अगर इस string को आप reverse कर दो, say ABAC ABA, ये reverse करने के बाद भी अपनी original form में ही आ जाती है, then such kind of strings are known as palindromes. Okay, so in this question we need to find out हमें बताना है कि क्या हम एक कैरेक्टर को डिलीट करके बाकी की बची हुई स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बना सकते हैं या नहीं। अगर हम बना सकते हैं तो जिस कैरेक्टर को हम डिलीट कर रहे हैं वी नीड टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, एल्स अदरवाइज वी वुड बी रिटर्निंग जस्ट -1। ओके, सो इसकी अप्रोच बता देता हूँ। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, BC। ओके, सो अप्रोच बेसिकली यही है, हम दो वेरिएबल्स लेंगे I and J। I will be pointing at the start of the string and J will be pointing towards the end of the string। और हम दोनों के corresponding characters को मैच करते हुए चलेंगे। If there is a mismatch, then we will be checking कि इस कैरेक्टर को डिलीट करने के बाद जो बाकी बची हुई स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम बन रही है या नहीं बन रही। दो ऑप्शंस होंगे, या तो आई वाले कैरेक्टर को हम डिलीट कर सकते हैं या जे वाले कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। अगर जे वाला कैरेक्टर को डिलीट करके बाकी बची हुई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन रही है देन आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी जे। और अगर आई वाले कैरेक्टर को डिलीट करके बाकी बची हुई स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन रही है, देन आवर आंसर इज गोइंग टू बी आई। और अगर मिसमैच नहीं है, अगर both the characters present at I and J are exactly same, then we would just be traversing further. We will just be iterating over our string by incrementing I +1 and by decrementing J by -1. Okay, so this was our approach। और अब इसको कोड कर लेते हैं। कोड करने के लिए हम पहले दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, I और J। I is equal to 0 और and J is equal to s.length -1। जो स्ट्रिंग की लेंथ है -1। स्ट्रिंग की लेंथ -1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं एरे के बारे में बता रहा था दैट द इंडेक्सिंग ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो 0 से शुरू होकर लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा दैट विल बी लेंथ -1। ओके, सो हमने दो वेरिएबल्स बना दिए विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेड ऑफ आवर स्ट्रिंग एंड आवर टेल ऑफ अ स्ट्रिंग। I is pointing towards the head and J is pointing towards the tail। अब we'll be looping until I is less than J और हर एक स्टेप में we will be checking if the character present at ith position is same as that at jth position। तो हमें कुछ नहीं करना, तब हमें सिर्फ आगे ट्रैवर्स करना है by incrementing I by 1 and decrementing J by 1। Okay, else if there is a mismatch then there could be a possible solution। then there could be a solution कि हो सकता है हम I को डिलीट करने के बाद बाकी की स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बना सके। तो उसके लिए we need to check कि I +1 से लेके jth इंडेक्स तक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन रही है। अब तो I में ही दिक्कत थी भैया और I is our answer। else दूसरा कंडीशन हो सकता है कि we could delete J और मैं कह सकता हूं कि I से लेके अगर J -1 तक की स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बना रही है
then we have to just simply return j. Okay. और अगर ये पूरा लूप एज इट इज ट्रैवर्स कर लेते हैं हम, दैट मीन्स सारे कैरेक्टर्स जो आई पे प्रेजेंट है दे आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ जेथ कैरेक्टर. सो इन दैट केस वी नीड नॉट डिलीट एनी कैरेक्टर्स और हमें सिर्फ रिटर्न करना है -1. अब इस फंक्शन को लिखना बाकी है. दिस फंक्शन इज जस्ट सिंपली गोना चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट. सो टू राइट दिस पर्टिकुलर फंक्शन we will be returning bool from this function, and this function will be taking two variables as an argument, a string. तो हम i से लेकर j तक ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे if s of I is same as that of s of j, then we just have to increment I and decrement j. If there is a mismatch, तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है, and we just have to return false. और अगर पूरी स्ट्रिंग को हम सक्सेसफुली ट्रैवर्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ हर एक कैरेक्टर जो i पे प्रेजेंट है is exactly same as that of jth character, then we just have to simply return true. ओके, तो इसको रन करके देख लेते हैं. किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पैलिंड्रोम इंडेक्स हो गया था. लास्ट क्वेश्चन वाज पोस्ट कार्ड्स. हाँ, पोस्ट कार्ड्स. तो पोस्ट कार्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक बार बता देता हूं आपको. वी आर गिवन अ शीट ऑफ साइज h क्रॉस w. दिस इज द हाइट ऑफ द शीट एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द शीट. और इस शीट को हमें n स्मॉलर शीट्स में बनाना है. इफ वी कैन मेक n स्मॉलर शीट्स फ्रॉम दिस प्रिस्क्राइब्ड शीट, तो हमें रिटर्न करना है yes. और अगर हम n स्मॉलर शीट्स नहीं बना सकते, देन वी हैव टू रिटर्न w. अब शीट्स को डिवाइड करने की कंडीशन यही है कि अगर हमारी हाइट इज डिविजिबल बाय 2, देन वी कैन डिवाइड दिस शीट इन 2, और उन दोनों शीट्स के जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे h/2 क्रॉस w. और सिमिलरली अगर हमारी विड्थ ऑफ द शीट इज डिविजिबल बाय 2, देन वी कैन डिवाइड दिस शीट इनटू 2, और जो दो नए शीट्स बनेंगे that would have dimensions of h cross w by 2. ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको. एक एग्जांपल लेते हैं. से वी हैव अ शीट ऑफ साइज 4 cross 4. तो हाइट इज डिविजिबल बाय 2, तो हम हाइट के अक्रॉस इसको 2 में काट सकते हैं. सो जो नए शीट बनेंगे उनके डायमेंशंस होंगे 2 cross 4, 2 cross 4. 2 शीट्स बन गए हमारे. नाउ हाइट इज अगेन डिविजिबल बाय 2 ऑफ दीज 2 न्यू शीट्स, सो दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 more smaller sheets which will be having dimensions of 1 cross 4, 1 cross 4, 1 cross 4 and 1 cross 4. अब हमारी जो width है, ये वाली width, this is also divisible by 2, तो हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं 1 cross 2 में, 1 cross 2 में, 1 cross 2, 1 cross 2, 1 cross 2. ठीक है. And these smaller sheets can further be divided into sheets of dimensions 1 cross 1. तो in total हमारे पास पहले लेवल पर एक शीट थी, दूसरे लेवल पर 2 शीट आई because 4 was divisible by 2, that is its height was divisible by 2. तो हमारे पास 2 शीट्स बनी उससे. इन 2 शीट से हमारे पास 4 शीट बनी, क्योंकि हम उसको फर्दर और डिवाइड कर सकते थे. 4 से 8 बनी, एंड 8 से फाइनली वी हैड 16 शीट्स. सो इसको अगर हम 2 के पावर में रिप्रेजेंट करें, देन वी कैन से 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 and 2 to the power 4. अब इसको अगर हमें जनरलाइज करना है, देन वी कैन से दैट
the total number of sheets that can be deduced, that can be formed from a single sheet, this is going to be equal to the total number of times by which we can divide our height and width. सही है? हाँ भैया। सो आप 4 को 2 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हो? 2 बार डिवाइड कर सकते हो। और इसी तरीके से इस विड्थ को भी आप 2 बार डिवाइड कर सकते हो। तो इन टोटल आप शीट को 4 बार डिवाइड कर सकते हो। सो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर शीट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आर 2 to the power 4। ठीक है। सो अगर हम इसको जनरलाइज करें, सो टोटल नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विल बी 2 to the power of count, where count denotes the number of times that you can divide a particular sheet by 2। इसको एक बार कोड कर लेते हैं और कोड करते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। इसका जो इनपुट था वो थोड़ा डिफरेंट सेट किया था मैंने। इसमें एक ही टेस्ट केस में मल्टीपल इनपुट्स थे, तो हमें सबसे पहले उस टेस्ट केस को इनपुट करना पड़ेगा। Either you can write it like this, or you can write it like t is greater than 0 or t minus minus end में, और यहाँ पर आप अपना बाकी का कोड लिख सकते हो। But I prefer writing it like this because it's a little concise। ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि हम काउंट करें टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार हम अपनी हाइट और विड्थ को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। So while height is divisible by 2, we'll be incrementing our count and we will be dividing our height by 2। Okay, and while our width is divisible by 2, we'll be incrementing our count and we'll be dividing our width by 2। इसको शायद आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों चीजें सेम ही हैं। अच्छा, तो हमें अभी तक क्या किया है, ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर। ये बेसिकली रिटर्न करता है अगर हम h को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो रिटर्न होगा व्हेन वी राइट इट लाइक दिस। सो h मॉडुलस 2 विल गिव अस द रिमाइंडर व्हेन h इज डिवाइडेड बाय 2। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा देन दैट मींस आवर हाइट इज डिविजिबल बाय 2 और हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और हाइट को 2 से डिवाइड करके अपडेट कर देंगे। एंड सेम एज इट इज हमने विड्थ के साथ किया है। Once this is done, we'll have to compare the total number of sheets that we have formed। अगर वो हमारे n से ज्यादा है, then we have to output yes, else we will be printing no। इसमें मैंने इनपुट लिया नहीं, तो वो ले लेते हैं। हाइट लेनी है, विड्थ लेना है एंड द नंबर ऑफ शीट्स जिसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो इनपुट समवट लाइक दिस। ठीक है। ये इसमें एक और फंक्शन जो हमने यूज किया है दैट इज पावर फंक्शन। ये बेसिकली 2 इंटीजर्स लेता है और अगर आप पावर फंक्शन यूज कर रहे हो देन यू कैन रिप्रेजेंट a to the power b। अगर आप यहाँ पर a डाल रहे हो और यहाँ पर b डाल रहे हो देन दिस बेसिकली डिनोट्स a to the power b। ठीक है। फॉर आवर केस वी हैव रिटन 2 और काउंट, और यहाँ पर ये होगा। सो दिस इज अ कोड। इसको रन कर लेते हैं। इसमें किसी को कुछ नहीं समझ आए तो बताओ। आ गया भैया समझ।
सो इतना ही था आज के सेशन के लिए। आज में के वेबिनार में हमने लगभग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली।